बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 नवंबर 2025। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेसन में हम पढ़ रहे थे 2.4 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया था। आज हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। The formula to measure the magnitude of earthquakes is given by m is equal to log base 10 a over a naught. This is the formula for the magnitude of earthquakes. Earthquake यानी जलजला, जलजला आने का जो मैग्नीट्यूड है, मिकदार है, जैसे आप शिद्दत है, वो आपको पता चलता है कि 6.5 का है, 3.4 का है, इतनी शिद्दत का है, इतने मैग्नीट्यूड का है। तो वो यहाँ पे इस बारे में बात की जा रही है। तो फार्मूला, इफ एम्पलीट्यूड ए is 10,000 and reference amplitude A naught is 10. फर्स्ट जो है ये आपने सॉल्यूशन में शुरू करना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो आपको लिखा हुआ आएगा। लंबा क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखेंगे हम। आंसर सॉल्यूशन A is the amplitude. A is equal to 10,000. Sorry, 10,000 and reference amplitude यानी A naught is equal to 10. What is the magnitude of earthquake? M question mark है, M is equal to question mark. We know the formula. M is equal to M. We know M is equal to log base 10 A over A naught. This is the formula and this is the data we have made for such type of questions. Now we have to apply the values here. M is to be find out log base 10 into A is 10,000 over A naught is 10. कीमतें लग गई हैं, वैल्यूज उसमें एंटर हो गई हैं। नाउ ये 0 इस 0 से कट गया,
ये हो जाएगा m इज इक्वल टू log बेस 10 इंटू 1000। 1000 जो है वो 10⁻³ होता है, तो m इज इक्वल टू log बेस 10⁻³ और जब log लेते हैं आप, इसका log लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log इज इक्वल टू log 10 है तो 3 log बेस 10 इंटू 10, यानी ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसके बाद as we know log base a is equal to 1. We know this. So m is equal to, so log base 10 will also be is equal to 1. So 3 into 1 is equal to 3. So m is equal to 3. क्योंकि log बेस 10 इज इक्वल टू 1 है, तो उसकी जगह पे वैल्यू लग जाएगी 3 इंटू 1, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, दिस सम इज सॉल्व, ये सवाल हल हो गया है, दिस सम इज सॉल्व। जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 7। Abdullah invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T years is rupees Y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1.05 raised to power t. T is greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be double, यानी 2 लाख हो जाए, कितनी मुद्दत में, कितने टाइम में वैल्यू आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, 2 लाख हो जाए, 1 लाख से 2 लाख हो जाए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट initial investment is equal to 1 lakh rupees, 1 lakh rupees, 1 lakh इनिशियल इतनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट
of interest is equal to 5% per annum yearly. 5% पर एनम यानी ईयरली, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था। So that the total value of this investment after t years is y. तो टाइम टाइम क्या है? टाइम इज इक्वल टू t years, and investment after t years is y, and y is equal to is rupees y is equal to 2 lakh. Rupees 2 lakh is rupees 2 lakh. डबल हो गई, 2 lakh हो गई. Now find after how many years the investment will be double. तो t हमने फाइंड करना है. आपका जो फार्मूला है वो है y इज इक्वल टू 1 lakh. इसकी भी जरूरत नहीं, या लिख लें, into 1.05 raised to power t. This is the formula. You know y is equal to 2 lakh. So place the value of y into 1.05 raised to power t. Now 1 lakh will divide here. It will come to the this side of this equation. 2 lakh over 1 lakh is equal to 1.05 raised to power t. Now this will cut down, and 2 is equal to 1.05 raised to power t. Now by taking log on both sides, by taking log on both sides, by taking log on
both sides of equation. इक्वेशन के दोनों साइड पे आप लॉग लें, ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू t log 1.05. यू नो log 2 क्या होता है? 20 को 0 के खाने में log में देखें, 20 को 0 के खाने में log में देखें, ये log है क्योंकि ये 2 1 डिजिट है। आपने कम से कम log के देखने के लिए 3 डिजिट्स होते हैं, तो 2 0 लगा लें साथ, तो ये आ जाएगा 200। पहले तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 होगा, और टेबल वैल्यू के लिए हमें 3 हिस्से चाहिए। जो इसका मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसकी टेबल वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? 20 को 0 के खाने में देखेंगे, क्योंकि जब आपने टेबल वैल्यू देखनी है तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 जो डिजिट्स हैं वो चाहिए होते हैं। अगर कम है तो 0 लगा के पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ 2 था, 2 के साथ हमने 2 0 लगा लिए 3 डिजिट्स करने के लिए। तो पहले 2 खानों को, पहले 2 डिजिट्स को तीसरे के खाने में देखें, तो ये आ जाएगा 3010 3010। वैसे भी log 2 आपको बताया भी हुआ है 0.3010 होता है, ये पीछे आप पढ़ के आए हैं। अब t log 1.05, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट है, तो उसमें से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ये आप पीछे पढ़ के आए हैं कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाता है। तो 0 पॉइंट, अब आपने 10 को 5 के खाने में देखना है, टेबल वैल्यू लगानी है मैंटिसा की लॉग में 10 को 5 के खाने में। तो 10 को जब 5 के खाने में देखेंगे तो ये आ जाएगा 0212 0212। अब t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल टू t। अब आप इसको डिवाइड करें तो ये डेसिमल तो आपका खत्म हो गया, बाकी आपने डिवाइड करना है 3010 को 212 पे। 3010 को 3010 डिवाइडेड बाय 212। ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जो शुरू में 0 होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। 212 पे डिवाइड करें, 1 टाइम जाएगा 212, 11 में से 2 9, इधर 9 में से 1 8, ये 2 में से 2 0, इधर 0 लगाएंगे। नाउ ये तकरीबन 4 टाइम चला जाएगा, 4 से 4 2 are 8, 4 1 are 4 and 4 2 are 8। तो ये
2 बचेगा इधर, एंड इधर 8 में से 4 निकल गया, 4। तो ये चूंकि इसके हाफ से बहुत ही लेस है, इसलिए आपका जो इसको निग्लेक्ट कर देंगे, ये जो बचा है ये निग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कट के 14 इज इक्वल टू टी, यानी टी इज इक्वल टू 14 ईयर आ जाएगा। 14 ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। टी इज इक्वल टू 14 ईयर्स आ गया। तो ये आप देख सकते हैं